باز ہیں تو تیسری طرف جو سینئر کھلاڑی ہیں عمران خان، ان کا مقابلہ ہوگا، یا آصف زرداری صاحب، عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہوگا۔ یہ ہوگی ہماری آج کی ڈیبیٹ، جس میں میرے ساتھ شامل ہیں انجم عقیل صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سینیٹر میاں عتیق صاحب جو کہ صدر ہیں ایم کیو ایم پنجاب کے اور ممبر رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم ڈیسیجن میکنگ باڈی، سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ مرتضی ستی صاحب سینئر، یہ ملک کو کام کے لیے ٹھیک۔ سینیٹر صاحب اگر ہمارے حکمرانوں نے اگر غلطی کی ہو، ہر چیز کی ایک کویسچن ریز ہونا یا ڈیبیٹ ہونا یا لوگوں کا اویئر ہونا تو ان کا رائٹ ہے، اگر اڈے دیے گئے، اگر ویزے دیے گئے، کچھ بھی اگر انلیگل کام کیا گیا جو ملک کے لیے بدنامی بنا بعد میں، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا ابھی بھی انفلوئنس ہے پنڈی کا اتنا ہی جتنا پہلے تھا؟ دیکھیے میں نفع اس پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ویزے دیے گئے یا نہیں دیے گئے، ویزے کن کو دیے گئے، کس کی ایما پہ دیے گئے، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک چیز جتنے ہم لوگ اسلام آباد میں رہنے والے ہیں، اگر اس وقت کو یاد کریں تو ہم میں سے کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت بلیک واٹر کا دورہ تھا اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر وہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب اس میں سے کتنے لیگل سٹیٹس کے ساتھ آئے، کتنے بغیر ویزوں کے آئے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ہی ایک آبزرویشن آئی تھی جو میں نے پڑھی بھی کہ 25,000 کے قریب پاکستان میں ایسے لوگ آئے کہ جن کو یا تو غلط ویزے دیے یا ویزے دیے ہی نہیں گئے، بغیر ویزے کے بھی آ گئے۔ جناب یہ دیکھیے، یہ میں بڑی وہ بات کر رہا ہوں کہ جو کوٹ ہوئی ہے، انٹر کیسے ہوئے سر؟ یہی تو بات سوچنے والی ہے۔ اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ ان دنوں میں ایک بات یہاں پر بہت زیادہ ہر ایک کے سامنے آ رہی تھی کہ جی کوئی بلیک واٹر والے ہیں، وہ آئے ہیں اور وہ 50,000 والا گھر کرائے پہ لیتے ہیں اور 2 لاکھ روپے میں لے لیتے ہیں اور بہت پیسے خرچ رہے ہیں۔ مطلب یہ تو اسلام آباد کی حد تک اب وہ کر کیا رہے تھے، دیکھنے میں بھی آیا، یہ تو سب جگہ ہے، آگ لگ گئی کرایوں کو جی۔ اچھا، اور اس میں باقاعدہ مینشنڈ کیا جا رہا تھا بلیک واٹر کا نام۔ اس بلیک واٹر کو کیا وہ یہاں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے آئے تھے یا دہشت گردی کرانے آئے تھے؟ اور اگر سر غلط آئے بھی، یا جن کی وجہ سے غلط آئے، وہ انویسٹیگیٹ انکوائر ہونا چاہیے۔ That's what it is. سمپل اتنی سی بات ہے۔ چونکہ اب اس میں ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں، یہ جو حقانی صاحب کا معاملہ آ رہا ہے، حقانی گیٹ، جس طرح انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے وضاحت سے یہ کہا کہ اس وقت میں یہ کسی کی ایما پر ایبٹ آباد والا واقعہ ہوا۔ اب ان کا سر آلریڈی تھوڑا سا ان کے الفاظ انہوں نے کہا جی میں نے فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کو یہاں آنے میں، اور انہوں نے پھر ٹریس کر لیا اسامہ کو، مطلب میں نے چلے نہیں ہیلپ آؤٹ کیا، 2 باتیں، ہیلپ آؤٹ ایک یہ ہیلپ آؤٹ کیا اسامہ کو ڈھونڈنے میں، اور دوسرا جو وہ انسیڈنٹ ہوا کہ وہ آئے اور لے کر گئے، اس کے لیے خاص طور پر اس نے کہا کہ کچھ لوگ حکومت کے they were knowing this thing، کانسنٹ شامل تھی، اور یہ آلریڈی یہ بات کس ہم اس پیراہے میں دیکھ رہے ہیں۔ اور سر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا اس نے امپریس بھی تو کرتا ہے؟ نہیں، اس سے ایگری نہ کرنے سینیٹر صاحب ایگری کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ہو سکتا ہے اسے امپریس کر رہا ہو کیونکہ وہ سیلیبل پروڈکٹ لوبیسٹ ہے، میں قطعی طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یو آر جسٹ کوٹنگ کہ ہی سیڈ دیٹ، جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اب آ جاتے آگے، آج تک ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کیوں سامنے نہیں لائی گئی؟ حق ہے نا عوام کا، کیوں بنائے جاتے ہیں کمیشن؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ نے رپورٹ کو ویسٹ منی جس جگہ پر، اب رپورٹ کیا ظاہر کرے گی کہ واقع میں ہی کچھ لوگ انوالو تھے یا نہیں تھے، جو تھے وہ کس حد تک تھے۔ اب میں یہ ایک بات اور آخری بات کہہ کر ختم کروں گا، رپورٹ چاہیے تو میں پروگرام کے بعد آپ کو دیتا ہوں، الجزیرہ کی مہربانی سے آئی ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں، بٹ ہم کہتے ہیں آفیشلی کیوں نہیں آئی؟ الارمنگ ہے، دیٹ از ویری الارمنگ۔ آخری بات جو میں کروں گا کہ دیکھیے اس طرح کے کاموں کو اگر آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ آئندہ کے لیے تو دروازہ بند کرتے ہیں، تو آپ ریکمینڈ کریں گے انویسٹیگیٹ کریں۔ اور سینیٹر صاحب ویزے دیے، غلط کیا، سپوز لیٹس فار انسٹنٹ
वो इलीगल लोग आ गए, जैसे भी आ गए, एक किसी शख्स ने अड्डे तक दे दिए थे मुल्क बिल्कुल के, दिए, उन्हीं को दिए थे अमरीकियों बिल्कुल को, दिए। तो वो भी इन्वेस्टिगेट होना कतई चाहिए। तौर पर नहीं, बिल्कुल होने चाहिए इन्वेस्टिगेट, देने डॉक्टर ही नहीं जलील चाहिए। खान घर किसका बैठा इख्तियार हुआ है? है, हमारे किसका- साइंटिस्ट सारे इंटरव्यू किसका मतलब वो तो सर इख्तियार है जनरल जी? बात करेंगे, उसको भी हाँ। इंक्वायर होना चाहिए, उसको भी जरूर होना चाहिए हर चीज। का तो ये ख्याल था कि जब डिफरेंस आ जाता है तो फिर कोशिश होती है बेंच की कि कोई एक मुतफिका फैसले पे आए, सो इट टेक्स टाइम, और 20,000 सफ़े हैं पढ़ना। व्हाट इज योर एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन? देखिए, जो पहली बात तो ये है कि ये कोई आम केस नहीं है, ये अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम केस है। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये फुल बेंच नहीं है, 5 जजेस का बेंच है। हो जाता है इसमें डिसेंट नोट भी आ सकता है, कोई अपनी ऑब्जर्वेशन भी अपनी तरफ से जो कोई लिख सकते भी हैं, रोकन दे सकता है। तो कोई रुकन दे सकता है। लेकिन चूंकि और फैसला भी तफसीली फैसला आएगा, डिटेल ये कोई 2, 4, 10, 20 सफ़ों का फैसला नहीं होगा जो इस तरह के केसेस की और आम तौर पर फैसले पीटीआई आते ने हैं। इतनी फाइलें दे दी हैं, वो भी तो पढ़नी चाहिए ना। देखिए, 20,000 उसको सफ़ा मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, उनका हक था, बिल्कुल उन्होंने दिए, वो केस किया था उन्होंने। जो कागज वो मुनासिब, मुख्तलिफ लोगों को मौका मिलता है मुख्तलिफ किस्म की क़ियासराई करने का। जितना टाइम गुजर गया काफी है, इसका फैसला जल्द अज जल्द आना चाहिए। लेकिन सर, जो अब्बासी साहब ने कहा कि 32 साल हो गए शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसला नहीं आया, जो अगले साल जब मैंने यहाँ टॉक शो करना है, क्या हम ये तो नहीं कह रहे कि 33 साल हो गए फैसला नहीं आया? देखिए, अभी फैसले से पहले इस बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि आया शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसला आएगा या नहीं आएगा। उन्होंने तो आउटलाइन बता दी अगर है उनके सर। खिलाफ आ गया, देखिए अभी तो फैसला नहीं आया ना, हम में से कोई भी ये नहीं 100% कह सकता कि ये फैसला उनके खिलाफ आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो ऐड आ रहे हैं पीटीवी, सॉरी नॉट पीटीवी ओनली, ऑल टीवी चैनल्स पर प्राइम मिनिस्टर के, इसके पीछे कोई मैसेज होता है कि एग्जैक्टली देखिए, वो इसके तो विषय यहाँ में- तक भी, वो तो यहाँ तक, अब जैसे जरदारी साहब लीडर हैं और कौमी लीडर हैं, विजन रखते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट थी उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से केस प्लीड होना चाहिए था, वकला ने उस तरह केस प्लीड नहीं किया। उसके पीछे भी एक पूरी मतलब मैं सर बात नजर आती 2018 है। के इलेक्शन में बड़ा टूल होगा जिसके खिलाफ भी फैसला आया। 18 का जब इलेक्शन होगा, दोनों पार्टी जिसकी फेवर में आया वो क्रेडिट लेगी। डिपेंड्स कि फैसला आता किस तरह का है, ये इसके ऊपर जो है सर। फैसले की वर्डिंग है ये हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं अभी भी। आपके क्या ग्राउंड हैं? देखिए ना, क्या वो देखिए, वो तो बड़े बड़े ऐड चला रहे हैं सर, अरबों रुपए के ऐड चल रहे हैं टीवी चैनल। यही चीज तो हम- कुछ थोड़ा सा इंडिकेशन दे रही है कि ना सिर्फ नून लीग ऐड चला रही है, बाकी भी पार्टियां अपने तौर पर कुछ ना कुछ हिस्सा ले इलेक्शन रही का हैं। माहौल बन गया है आपके अब जैसे आज जरदारी साहब ने ओपनली कह दिया, तो पंजाब आप इसको क्या लेंगे? इलेक्शन कैंपेन। नॉट अपार्ट और स्टार्ट, और 1 साल बाद चले, हम कहते हैं 17, 18, हाँ, मैं कहता हूं 18। 17 में 9 मंथ रह गए, 18 में आगे कितने महीने हैं? आगे फिर 3-4 और हैं। 3-4 महीनों की बात थोड़ा है। कर लें। साल का है जी। तो 1 maximum, साल के maximum। अंदर इलेक्शन तो होना ही है, 1 year 17 में हो या 18 में हो। So पूरा election टाइम campaign भी शुरू हो गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने पूरे 5 साल पूरे भी करें, फिर भी 1 साल के बाद इलेक्शन होने ही है ना। ठीक। तो साल पहले इलेक्शन से तो इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। सेनेटर साहब, आप लॉ मेकर हैं, 4 साल गुजर गए हैं, इन्होंने बड़ी धांधली का शोर मचाया पीटीआई वालों ने। इस्लाहात का क्या स्टेटस है, या उसी 2013 वाले तरीके से ही हम जाएंगे? देखिए, मैं इस पर बहुत बोला हूं जी, पहले Reforms भी, हो हर चुकी जगह हैं कुछ? कहता हूं, नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिस तरह की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कैसे? वो बिल ही नहीं आया। इतना लंबा, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज। 4 साल में और ये- वो- तो मैं भी कह रहा हूं। जी, अगर बिल्कुल 4 साल में कह रहे ये हैं आप। स्पीड आप है, बिल्कुल- 15-20 अब उसको साल में कौन शायद आई रोक रहा है वो मैं नहीं जानता, मैं उस पर कुछ नहीं कह आप सकता। लॉ मेकर, आप सेनेटर हैं, आप वहां बैठे क्या ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ डिले हो रहा है, किस जगह डिले? जनाब, देखिए, एक नून वाले process है। कहते हैं पीटीआई वाले आते नहीं हैं, पीटीआई वाले कहते हैं नून लीग वाले खुद कर दें। देखिए, अगर हम ये कहें कि मैं विदाउट मेंशनिंग नून की गलती या पीटीआई की गलती, आपको एनालिसिस तो देना है ना, वहाँ Meetings- बैठे हैं हाउस के अंदर आप। हमारे नॉलेज के मुताबिक, हाँ। देखिए, अब जैसे मैं एक बिल लेकर आता हूं, एक प्रोसीजर है, मैंने 15 1 साल में प्राइवेट मेंबर बिल सेनेट में दिए हैं। अब वो बिल्स आगे कमेटी के पास चले जाते हैं, उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक टाइम है, लैप्स होता है, उसकी एक्सटेंशन लेते हैं। अब वो कब तक चलेगा वहां? सर कौन ले रहा है एनालिसिस? दें, आप हाउस के अंदर बैठे हैं ना, या तो बाहर बैठे देखिए, होते, मेरा हाउस सेनेट अपर है, हाउस के अंदर है ना, नेशनल असेंबली में बिल ऊपर आया बैठे हुआ है, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नेशनल असेंबली में बिल आया हुआ है, एक कमेटी बनी हुई है,
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर जो कमेटी उस है कमेटी में हाजिरियां किसकी कम है? ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ कहना। नहीं वो देखते पीटीआई वाले लोग उसमें कम गए ये बड़ा अच्छा सर। अब आप लोगों ने 18 की नहीं, बात छेड़ उसमें दी। एक बिल मैं भी है। लिविंग पार्टी से ही पूछूंगा स्पीकर के कसूर के हवाले से, लेकिन आप ये बताइएगा अब इलेक्शन आगे साल के बाद एमक्यूएम क्या बेचने जा रही है? यू ऑल एक सेलेबल प्रोडक्ट होता है ना कि हमने जनाब ये किया। नहीं एमक्यूएम ने देखिए फिर वही बात है, हम एमक्यूएम पाकिस्तान की जब बात करते हैं और आने वाले इलेक्शन में हमने वही चीज़ है जो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो कराची वाले लोग हैं वो कराची वाले फैसला करेंगे कि उन्होंने अपनी नुमाइंदगी किसके हाथ में दी। मेयर आपका अभी आप मौजूदा आप बिल्कुल है बिल्कुल सो आपकी डेवलपमेंट या कोई खास नहीं, चीज वो तो हम ओपनली बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के जिस हिसाब से पैसे मिलने चाहिए 8 साल से नहीं मिले, वो डेवलपमेंट फंड्स कराची के लिए जो आने चाहिए आप अब भी बताएंगे नहीं आए, लोगों को कि और हमें नहीं करने दिया इख्तियारात का भी सती साहब की मसला पार्टी है। ने। ठीक है, आप कहेंगे कि जो सूबाई हुकूमत उन्होंने नहीं करने दिया आपको। नहीं, पंजाब में भी नहीं दी जी अभी तक। वो देखिए और वो पंजाब में भी अभी तक जो इख्तियारात का मामला 140 है ए को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और सर आगे मैं हर पार्टी से ये पूछना चाह रहा था ना कि नहीं, क्या ये उनके पास क्या बलदियाती चीजें फंड बेचने नहीं के दिया लिए। बलदियाती आखिरी फंड। चीज मैं पूछता हूँ आपसे, जी, जरूर। लेकिन कितना डैमेज होगा जो आपके गुरु हैं या फाउंडिंग फादर हैं या बानी हैं, जो भी नाम दें, बहुत से नाम हैं, वो ऐसी ऐसी तकरीर करते हैं, इसका कितना डेंट पड़ेगा एमक्यूएम को? अभी जो है वो मैं हमारे ऊपर देखिए, पाबंदी मैं- है सर, हम आपके चीफ वो को आप फायदा भी समझते है, हैं, वो पाबंदी आज भी हमारे ऊपर है, मैं मौजूद इसलिए वो तो कह नहीं फैसला सकता की जिन्होंने सकते। कल फरमाया। हाँ, जो हाई कोर्ट की तरफ से पाबंदियां हैं उसके मुताबिक ये कितना हमारा डेंट हमारे मेरा सिर्फ उसमें एक ही जवाब है। 22 तारीख के वाक़े के बाद 23 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान ने, हमारी राब्ता कमेटी ने, जो फारूक सत्तार भाई ने उस दिन कहा, हम आज भी उस पर कायम हैं। ठीक है, हमारा MKM पाकिस्तान टोटली लाताल्की है, कोई किसी ज्यादा किस्म डेंट की- नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका अपना होगा जो भी है। देखिए और वो- आप यंग क्यादत किसको लेकर फरूक भाई लीड करेंगे? नहीं, वो तो कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो भी इलेक्शन जब भी होगा उसमें पाकिस्तान की एक अहंग पार्लियामेंट होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें